हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। हमारे पहले 3 लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सॉलिड स्टेट्स फोर्थ लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने हमारे पहले 3 लेक्चर्स में इंट्रो, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल्स, क्लोज पैकिंग, वॉइड्स कवर किया था। In today's class we will do packing efficiency and density of unit cell. These 2 points we are going to discuss in today's class. Okay, and we will do lot of numericals based on this topic. So आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है because we are going to discuss numerical problems based on this. So हम लोग स्टार्ट करते हैं with today's class. So पहले हमने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, तो उसका सोल्यूशन हम लोग दे देते हैं। So देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया था, ये कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x and y. Atoms of element y makes cubic close packing arrangement and those of element x occupies all octahedral voids. Then what is the formula of compound? So देखो उसका आंसर, पहला हम लोग क्या लिखना है, as usual given data y forms CCP lattice. So assume that in CCP lattice there are n number of atoms. अभी जो कि CCP lattice y atom ने बनाया है, therefore number of y atoms कितना रहेगा, n. So we all know that number of octahedral voids is equal to number of atoms in the arrangement. So that is nothing but number of y atoms na. Therefore number of octahedral voids will be equal to n, correct? So x occupies all octahedral voids. Therefore number of x atom कितना रहेगा बच्चों, n, क्योंकि number of octahedral voids कितने हैं, n है ना. So ratio of atoms x is to y will be what, n is to n, that is equal to 1 is to 1. Therefore formula of compound will be xy. समझ में आया सबको? This is the homework problem which we are given in last class. So students, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं with packing efficiency. तो देखो, packing efficiency is the fraction or percentage of total space occupied by the particles. So देखो, packing efficiency is equal to volume occupied by particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100. करेक्ट. So देखो, volume occupied by particles in unit cell कितना रहेगा, volume of one sphere और volume of one atom into number of atom. यहाँ पे हमने sphere क्यों बोला, क्योंकि atoms are spherical. Volume occupied by particles in unit cell मतलब क्या आएगा, total space occupied, right? Divided by total available space क्या होगा, total volume of unit cell. That means it is a fraction of total space occupied. अब देखो total volume of unit cell कैसा है, क्यूब है, करेक्ट. तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब. सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला समझ में आया. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी. सो अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी यूनिट सेल करेंगे. सो देखो, वी विल स्टार्ट विद सिंपल क्यूब यूनिट सेल. ये हमारा सिंपल क्यूब यूनिट सेल है. तो देखो एग्जैक्टली कैसा रहता है हम लोग बताते हैं. ये सिंपल क्यूब रिप्रेजेंटेशन हो गया. सी, दिस एटम्स इन सिंपल क्यूब यूनिट सेल्स आर connected or they are touching each other. So all corner atoms in simple cube unit cell are touching each other, right? So देखो, उसका पर यूनिट सेल कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 हो गया ना. तो देखो ये हमारा सिंपल क्यूब यूनिट सेल हो गया. ठीक है, ये 1/8 पार्ट ऑफ द एटम है, करेक्ट ना. ये हमारा कॉर्नर एटम. नाउ ये जो है, ये हमारी क्या है, एड्ज लेंथ है. तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहां तक, ये क्या है, आर है ना. ये भी क्या है बच्चों, आर है, राइट. सो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू 2r. सो वी हैव गॉट रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूब यूनिट सेल इज A is equal to 2r. समझा, A equal to 2r. So now packing efficiency का फॉर्मूला क्या है, it is number of atoms into volume of sphere divided by total volume of unit cell into 100. Now in case of simple cubic unit cell, it contains only one particle. Therefore packing efficiency will be what, 1 into 4/3 pi r cube into 100. और volume of unit cell क्या आएगा, A cube आएगा ना. तो देखो, अभी a के बदले क्या पुट करेंगे बच्चों, 2r ना. तो a के बदले अगर 2r पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये r क्यूब और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट. देन वी विल गेट
100 pi by 6. So packing efficiency for simple cube unit cell is 52.36 परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि टोटल यूनिट सेल में से सिर्फ और सिर्फ 52.36 परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड है, और जो बाकी का स्पेस जो है वो एम्प्टी है, और उसको क्या कहेंगे हम लोग? वॉइड। करेक्ट। So therefore, percentage of total space occupied in simple cube unit cell will be 52, and percentage of total space left empty is 100 minus 52.36, that is 47. ठीक है? So now it is very important note students that in simple cube unit cell all corner atoms are touching each other. समझा? बहुत important है बच्चों। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। तो देखो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, ये सारे कॉर्नर एटम्स है। करेक्ट। ये बॉडी सेंटर्ड एटम है। करेक्ट ना? सो देखो ये हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगी। एग्जैक्टली कैसे रहता है? ऐसा रहता है बच्चों। देखो ये कॉर्नर एटम और ये बॉडी सेंटर एटम एक दूसरे को चिपका हुआ है, but students you remember that corner atoms are not touching each other. See, in BCC corner atoms are not touching each other, but all corner atoms are touching the body centered atom. That is a important point you must remember. देखो बच्चों सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? सारे के सारे कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, बट बॉडी सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर एटम्स टच नहीं करता है, बट सारे कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर एटम को टच कर रहे हैं। अंडरस्टूड ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों। सपोज ये हमारी बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये कॉर्नर एटम है। करेक्ट। ये बॉडी सेंटर एटम है और ये कॉर्नर एटम है। राइट ना? देखो बच्चों ये वाला है ना, ये वाली हमारी ये वाला कॉर्नर एटम है। करेक्ट। ए एटम, ये बॉडी सेंटर वाला एटम सी, और ये जो है ना वो पीछे वाला कॉर्नर है। तो ये जो पूरी जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, इस लाइन को कहते हैं बॉडी डायगोनल। सो देखो ए एफ इज अवर बॉडी डायगोनल। सी देखो ये डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया। ये डिस्टेंस आर, ये भी आर, और ये भी क्या हो गया? आर। तो बॉडी डायगोनल ए एफ इज इक्वल टू 4r। समझ में आया? सो देखो अभी देखो, नाउ इन दिस ट्रायंगल, in triangle FED, F then ED, तो ये ट्रायंगल में यानी से ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 हो गया। करेक्ट ना? नाउ FD is our face diagonal and AF is our body diagonal. नाउ देखो FE is your A edge length, है ना? DE is your A. According to Pythagoras theorem क्या रहेगा? FD square is equal to FE square plus ED square. करेक्ट। सो ये कितना है? FE कितना है? A है। ED कितना है? A है। दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल ADF, ADF, राइट, AD कितना है? A है ना, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। DF कितना है अपना? 2A स्क्वायर, इधर डिराइव किया हम लोग ने। करेक्ट। AD कितना है अपना? A स्क्वायर। तो AF स्क्वायर कितना हो गया? 3A स्क्वायर। तो उसको स्क्वायर रूट लेंगे तो AF विल बी इक्वल टू रूट 3A। राइट। AF क्या है अपना? बॉडी डायगोनल, दैट इज इक्वल टू 4R। हमने पहले ही बोला था। तो कहना है से 4R इज इक्वल टू रूट 3A। करेक्ट। देयरफॉर A विल बी इक्वल टू 4 by रूट 3R, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। समझ में आया? नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा? A क्यूब। राइट। अभी A के बदले हम लोग ये पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा? 64R क्यूब इंटू 3 रूट 3। समझा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैकिंग एफिशिएंसी? इट इज नंबर ऑफ एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। सो देखो BCC यूनिट सेल कंटेन्स 2 particles, therefore packing efficiency is equal to 2 into 4 pi R cube into 100 divided by 3 into A cube. बट देखो A क्यूब क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है ना, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC comes out to be 68%. Understood? Therefore we can conclude here that
percentage of total space occupied in BCC unit cell is 68%, and the percentage of space empty or we can say void volume is 32%. समझा? So it's very important note students. In BCC unit cell, corner atoms are not touching each other. All corner atoms are touching to body center atom. ये बहुत important notes है. Okay? चलो आगे बढ़ेंगे. Now we will see packing efficiency for FCC unit cell. देखो ये FCC unit cell है. देखो in FCC unit cell corner atoms are not touching each other ना. देखो बच्चों ये corner atom है, ये भी corner atom है, they are not touching each other, but corner atoms are touching to the face center atom, correct? ठीक है? See, देखो स्टूडेंट्स ये फेस सेंटर एटम है, फेस सेंटर एटम को कॉर्नर एटम चिपका हुआ है. सो देखो ये अपना फेस सेंटर क्यूबिक का जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है. तो देखो ए बी सी एंड डी इज फेस, करेक्ट? ए सी इज ए फेस डायगोनल और ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है. सी स्टूडेंट्स ये कॉर्नर एटम है, ये दूसरा कॉर्नर एटम है, ये इसको ये फेस सेंटर एटम को कैसा है चिपका हुआ है, राइट? नाउ सी ये AC है, ये क्या है R है ना, ये क्या होगा R, ये होगा R और ये भी होगा R. तो कहना है से AC इज इक्वल टू 4R. समझा? सो देखो फेस डायगोनल AC इज इक्वल टू 4R. नाउ वी विल सी इन ट्रायंगल ABC. कहना है से दिस एंगल is 90 degree, correct? So according to Pythagoras theorem we will say that AC square is equal to AB square plus BC square. So therefore AC square is equal to what? 2A square. Therefore AC is equal to root 2A, correct? और AC क्या है बच्चों? 4R है ना, है ना? तो 4R is equal to root 2A. तो A is equal to 4R by root 2. Okay, therefore R क्या है बच्चों? R will be equal to A by 2 root 2. समझ में आया? ये हो गया फॉर FCC. सो देखो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कैसे निकालेंगे? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर? 4 पाई r क्यूब बाई 3, करेक्ट? r के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? a by 2 root 2 ना. सो therefore this equation will become volume of one sphere will become pi into a cube divided by 12 into root 2. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना रहेगा? सी ये वन एटम का वॉल्यूम है, राइट? FCC में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4 होते हैं ना. तो 4 into वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. Therefore we will get pi a cube by 3 root 3. So packing efficiency का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, करेक्ट? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स क्या होता है? pi a cube by 3 root 2, करेक्ट? टोटल वॉल्यूम क्या है? a cube into 100. So percentage of space occupied will be 74% and total space will be 26. तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि here corner atoms are not touching each other but corner atom of each face are touching that face center atom of that face, correct? सब फॉर्मूलाज को हम लोगों ने समराइज किया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल. ठीक है? यूनिट सेल है, सिंपल क्यूब यूनिट सेल. रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू ए बाय 2, करेक्ट? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल पाई ए क्यूब बाई 6, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना रहेगा? 1. अंडरस्टूड? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, करेक्ट? यहाँ पे बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है. एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12 है. दिस यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स. ठीक है? नाउ एससी की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, बीसीसी की 68 और एफसीसी की 74, करेक्ट? इसका मतलब FCC is more closely packed, correct? Or we can say FCC is more dense. समझा? It is more closely packed. So ये formulas, ये table आपको अच्छे से by heart करना है. So students, now we will see a numericals based on this part. ठीक है? So silver उसका unit cell FCC है.
सो देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये वैल्यू पहले आप लोग याद रखना है। √2 का वैल्यू क्या है, 1.414। ठीक है, याद हो जाएगा। हमें क्या क्या दिया है इसमें, सिल्वर हैज एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, इट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर। रेडियस क्या है उसका, 144 पिकोमीटर। अभी देखो 144 पिकोमीटर है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। दैट विल बिकम 1.444 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर एफसीसी एड्स लेंथ का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू 4r बाय √2। करेक्ट, उसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट दिस। तो हम लोगों ने एड्स लेंथ निकाला। अब हमको क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम क्या आएगा, 4πr³ बाय 3 ना, दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम। समझा। Now, as it is FCC unit cell, there are 4 silver atoms present per unit cell. Correct ना? Therefore, volume occupied by 4 atoms will be 4 into volume of 1 silver atom. समझा? Therefore, we will get volume occupied by 4 silver atom will be 4 into 1.261 into 10⁻⁻23 centimeter cube. Correct? इसको solve करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा। So, total volume of unit cell, that is A cube. Correct? This is the total volume of units. समझा। So percentage of volume occupied by silver atom will be, है ना, मतलब वो क्या पूछ रहे, पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहे हैं ना। अभी हमको पता है एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, 74%। ठीक है, और उसको ऐसा भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसका रेशियो लेंगे ना तो हमें 74 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ परसेंटेज एम्प्टी स्पेस सबको पता है, कैसे करेंगे, 100 - 74 करेंगे। समझा। Now we will do density of unit cell. ठीक है, सो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। करेक्ट ना, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। राइट, सो देखो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम एंड लेट नंबर ऑफ एटम्स बी z। देखो एक एटम का जितना मास है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से तो हमको मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। करेक्ट, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर क्या है, एटम्स ही तो है। अभी मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलने का वो देखो। तो स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, देखो 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज कितना रहता है, इज इक्वल टू, इट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, लेट मॉलिक्यूलर मास बी m, है ना। तो मास ऑफ 1 मोल कितना रहता है, इक्वल टू इट्स मोलर मास। राइट, नाउ 1 मोल में कितने एटम्स रहते हैं बच्चों, 1 मोल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। Right, therefore mass of Na number of atoms will be equal to m gram. Correct, तो mass of 1 atom कितना रहेगा बच्चों, therefore mass of 1 atom will be equal to m upon Na. Understood? So देखो, therefore देखो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया m by Na. Understood? Therefore mass of unit cell will be z into m by Na. Therefore डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का क्या आएगा फॉर्मूला, मास के बदले ये पुट करेंगे और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो A क्यूब है। Therefore दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डेंसिटी कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या करेंगे, देखो क्या करते हो न्यूमेरिकल में, वो लोग डेंसिटी देते हैं, Z देते हैं, M देते हैं, Na देते हैं, बोलेंगे A क्यूब निकालो, एड्ज लेंथ निकालो, और सब देंगे बोलेंगे डेंसिटी निकालो। करेक्ट, और बाकी का ये देंगे बोलेंगे मोलर मास निकालो। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर देखते हैं। सो लेट अस इंट्रोड्यूस ईच एंड एवरी टर्म वेयर z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। फॉर सिंपल क्यूब z इज इक्वल टू 1, फॉर बॉडी सेंटर क्यूब z इज इक्वल टू 2, फॉर FCC इट इज 4। नाउ फॉर आयनिक कंपाउंड z इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, याद रखना बच्चों। ठीक है, सो फॉर BCC स्ट्रक्चर वी राइट z इज इक्वल टू 2, but for BCC structure of ionic compounds, है ना, like cesium chloride, we must write z is equal to 1। ये आप लोग को याद रखना है। इसका रीजनिंग में हमारे जेई लेक्चर्स में कराऊंगा। जब हम लोग हमारे जेई के लेक्चर्स में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको ये क्लियर हो। फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ इतना याद रखो, अगर आपको सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बोला है तो आप लोग को z क्या लेना है, 1 लेना है हमेशा न्यूमेरिकल्स में। Now m क्या है, m is the atomic mass of the element, and for ionic compound m क्या होगा बच्चों, formula mass of a compound। ठीक है, a क्या होगी, एड्ज लेंथ, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी। नेक्स्ट उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते बच्चों। उन्होंने बोला है ए गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, द यूनिट सेल एड्ज लेंथ इज दिस, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड।
ठीक है, मोलर मास ऑफ गोल्ड इज गिवन। सो बच्चों इट इज क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी स्ट्रक्चर, मतलब Z इज इक्वल टू क्या 4, राइट। एड्स लेंथ दिया आपने को, एड्स लेंथ कितना दिया 408, सही है ना। तो देखो गोल्ड फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल, तो Z क्या रहेगा बच्चों 4 रहेगा ना। नेक्स्ट उसका एड्स लेंथ कितना आएगा 408 पिकोमीटर, तो इट विल बी 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, सही है ना। हमको पता है ना ये कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, समझा। नेक्स्ट कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड बोल रहे हैं, क्या दिया आपने को एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड कितना है 197, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालो बोल रहे हैं। तो कैसा करेंगे, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, समझा। तो Z के बदले 4 लिखेंगे, ये 197 हो गया, और ये A के बदले लिखेंगे, देन वी विल गेट दिस आंसर, दिस इज द डेंसिटी। नाउ स्टूडेंट्स we will do the expression for number of particles present in x gram of that substance, okay। तो let us assume that m be the molar mass of that element, correct। तो बच्चों what is molar mass, mass of 1 mole ना, therefore देखो I can write it as mass of 1 mole is nothing but it m gram, which is equal to its molar mass, correct। I can write as mass of Na atoms will be equal to its molar mass m gram, right। समझ में आया ये। सो देखो इसके लिए मैंने लिखा है कि m ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, समझा ना। सो देखो x ग्राम ऑफ मेटल विल हैव हाउ मच। सो बच्चों इसको समझाने के लिए देखो एक इजी तरीका है, m ग्राम मेटल में कितने एटम्स है Na, राइट। तो x ग्राम में कितने एटम्स रहेंगे, लेट अस से y रहेंगे, करेक्ट। तो क्या करने का, ऐसे लिखा, इधर एक लाइन बनाने का, इधर एक लाइन बनाने का, बीच में इक्वल टू करने का, हमें क्या निकालना है y निकालना है, y विल बी इक्वल टू Na इंटू x अपॉन m, वही तो लिखा है इधर, समझा। कैसे है समझा, समझा। दिस इज हाउ वी डू, वी ऑल नो दैट m इज इक्वल टू दिस, अभी पढ़ा है डेंसिटी केस में, correct। Now on substituting the value of m, we will get as number of particles in x gram of metal will be, अभी देखो ये जो है ना, ये m के बदले मैंने ये पुट कर लिया, तो क्या आएगा डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू Na डिवाइड बाई z, दैट इज इक्वल टू x इंटू z बाई रो इंटू a क्यूब, समझा। Now we will have expression for number of unit cell present in x grams of metal, ठीक है। अभी जो पढ़ा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, राइट। सो देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मोलर मास, हमने पहले ही बताया, देयरफॉर मोलर मास कंटेन्स एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी बताया, करेक्ट ना। देयरफॉर x ग्राम ऑफ मेटल विल कंटेन्स x into Na अपॉन m, राइट, करेक्ट ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस m in above expression what we will give, it will give as this number of particles in x gram will be this, we have to find out number of unit cells। so देखो z particle constitute one unit cell, correct। So how many particles we are having? We are having x into z by rho into a cube. So therefore x into z upon rho into a cube particles constitute this many unit cell, correct। So z gets cancelled. Therefore number of unit cell in x grams of metal will be x by rho into a cube. So we have done two relationship, ये number of unit cells के लिए ये and number of particles के लिए ये, समझा। Now we will do some numerical। तो देखो नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है तो Z क्या रहेगा बच्चों 2 रहेगा ना, करेक्ट। उसका डेंसिटी दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट ना। तो इट फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, उसका डेंसिटी दिया है, उसका एड्ज लेंथ दिया है 330.6 पिकोमीटर, अभी पिकोमीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। बच्चों नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है, x इंटू जेड बाय रो इंटू ए क्यूब, correct। therefore number of niobium atoms present in the 0.5 gram will be, x के बदले क्या लिखेंगे 0.5, और ये BCC है बोल के z is equal to 2, डेंसिटी दिया है, और a कितना है बच्चों 330.6 ना, उसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा। तो बच्चों ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया कैंसिल, देन वी विल गेट दिस आंसर, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स,
right? We know that number of unit cell in x gram will be what? X upon rho into a cube na. Therefore, number of unit cell in 0.5 gram of niobium will be 0.5 upon 8.55 into this, correct? तो देखो बच्चों, ये 0.5 ग्राम हो गया ना, तो ये ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर कैंसिल, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल. समझा ना? देखो, वी विल डू वन मोर न्यूमेरिकल. एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर. अभी बीसीसी स्ट्रक्चर है तो z क्या रहेगा बच्चों? z विल बी 2 ना, ठीक है. मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया बच्चों? 208 ग्राम, राइट. उसका एज लेंथ दिया है 288 पिकोमीटर, डेंसिटी दिया है 7.2. तो कैसा करेंगे बच्चों? उसको कैसा करेंगे स्टूडेंट्स? वी नो दैट number of atoms in x gram of element will be x into z by rho into a cube, right? तो ये हम लोगों ने पूरा सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला. तो अभी हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इन v वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ठीक है. तो देखो, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन v वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट. अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला है. तो v अपॉन a क्यूब, ये आप लोग याद रखना है, ठीक है. एक यूनिट सेल का इतना है, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन v वॉल्यूम विल बी v अपॉन a क्यूब. अंडरस्टूड दिस? नाउ दिस न्यूमेरिकल्स यू ट्राई. ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम लोग अगला क्लास में करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग.